ارے واہ، میرا یہ سپنا پورا ہو گیا کہ میں اپنی جمع پونجی سے اپنا گھر خریدوں۔ آج میں نے اپنا گھر خرید لیا۔ بوڑھی کبھی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ایک پیڑ پر گھر خرید لیتی ہے۔ میرے بیٹے جب یہ گھر دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ بوڑھی کبھی خوشی خوشی اپنے بچوں کی اور جا رہی تھی، تبھی راستے میں اسے چکر آتے ہیں اور وہ نیچے ایک پیڑ کی ڈالی سے ٹکراتی ہوئی گر جاتی ہے، اور وہ ڈالی بھی اس بوڑھی کبھی کے ساتھ ٹوٹ کر اس کے اوپر گرتی ہے۔ بوڑھی کبھی تو بہت گھائل ہو جاتی ہے۔ مانو چڑیا وہیں سے گزر رہی تھی، وہ دیکھ کر ترنت وہاں آتی ہے۔ ماں جی، آپ تو بہت گھائل ہیں، چلیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ بیٹی بیٹی، میرا سمے آ گیا ہے، اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ ماں جی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹی، میری سانسیں کم ہو رہی ہیں، میری بات سنو۔ کیا تم میری یہ بات میرے بیٹوں تک پہنچا دو گی؟ ہاں ہاں ماں جی، آپ جو کہیں گی میں ضرور انہیں جا کر بتاؤں گی۔ چڑیا بیٹی، میرے دونوں بیٹوں کو بتا دینا کہ ندی کے کنارے میں نے ان کے لیے ایک گھر خریدا ہے۔ میں انہیں بتانے جا ہی رہی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں مرنا ہی لکھا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے بوڑھی کبھی مر جاتی ہے۔ ماں جی، ماں جی، اٹھیے ماں جی۔ دونوں کبے اپنی ماں کے مرنے پر بہت اداس تھے۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے، مانو چڑیا بادل کبے کے پاس جاتی ہے۔ بادل بھیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کی ماں نے مرتے سمے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بات آپ کو بتاؤں۔ کون سی بات چڑیا؟ ماں نے کون سی بات بتانے کو کہا تھا؟ ماں جی نے ندی کے پاس ایک پیڑ پر آپ دونوں بھائیوں کے لیے گھر خریدا ہے۔ وہ تو آپ دونوں بھائیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن دربھاگیہ سے وہ ایک پیڑ سے ٹکرا کر مر گئی۔ کیا سچ میں ماں نے ہمارے لیے گھر خریدا ہے؟ ہاں بادل بھیا، آپ بڑے ہو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ ابھی مجھے آپ کے چھوٹے بھائی بھورے کبے کو بتانے بھی جانا ہے۔ بادل کبا تو بہت چالاک تھا، وہ تو بس اپنے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ارے، یہ بات تو مجھے پتا ہی نہیں تھی کہ ماں نے ہمارے لیے گھر خریدا ہے۔ ماں تو چاہتے ہوئے اچھا کام کر گئی، لیکن یہ بات اس بھورے کو پتا نہیں ہے۔ اب میں اس گھر پر اکیلے ہی قبضہ کروں گا۔ بادل بھیا، کیا ہوا؟ اب میں چلتی ہوں، مجھے یہ بات جا کر بھورے کبے کو بھی بتانی ہے۔ رکو رکو چڑیا، تم نہ جاؤ بھورے کے پاس، میں خود ہی جا کر بتا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے بادل بھیا، آپ جا کر ہی اسے بتا دینا۔ پھر مانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر بوڑھا کبا اپنی ماں کے غم میں بہت اداس تھا اور وہ اپنے بھائی کے پاس جا رہا تھا۔ گھر جا کر بادل کبا ساری بات اپنی پتنی بجلی کبھی کو بتاتا ہے۔ بادل جی، یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا جو اس مانو چڑیا کو وہاں جانے سے روک دیا۔ اب یہ گھر والی بات تمہارے بھائی کو نہیں پتا۔ اب ہم اس گھر پر قبضہ کریں گے اور وہ گھر ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن بجلی، کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ ارے نہیں نہیں، تم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے، ذرا سوچو نا۔ وہ بھورا تو اکیلا رہتا ہے، نہ اس کی پتنی ہے اور نہ اس کے بچے۔ دیکھیے نا، آپ کی پتنی بھی ہے اور ہمارے یہ دو چھوٹے بچے بھی۔ ہمیں تو اس گھر کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں بجلی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو یہی بتاؤں گا کہ وہ گھر میں نے پیسوں سے خریدا ہے۔ گھر کے باہر بیٹھا بھورا کبا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، تبھی وہ اندر جاتا ہے۔ بھیا، تم میرے ساتھ ایسا کرو گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ماں کے گھر پر تم اکیلے ہی قبضہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آخر اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ ارے، یہ بھورا کہاں سے آ گیا؟ سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ ارے بھورے بھائی، ذرا خود سوچو نا، تم تو اکیلے ہو، تمہیں گھر کی کیا ضرورت؟ میری تو پتنی اور بچے ہیں۔ دیکھو نا، یہ گھر ٹوٹا ہوا ہے، مجھے گھر کی بہت ضرورت ہے۔ بڑے بھیا، آپ نے میرا نہیں سوچا، میری بھی تو شادی ہوگی، مجھے بھی تو گھر کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بادل کبے کو غصہ آ جاتا ہے اور دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔
पूरे मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है, अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है, इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी आप चुप रहो, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कप्पो? अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कप्पो रुक जाओ, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कप्पे भाई किसी की बात नहीं सुनते, वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है, बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी काकी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कप्पो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है। अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कप्पे भाई बहुत उदास हो जाते हैं। पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे। मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कप्पो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए, सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है, थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो, उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी।
دیکھتے ہی دیکھتے سال بیت جاتا ہے۔ جنگل میں پھر سے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مینا چڑیا نے اب کبوتر اور کبوتری کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا، لیکن پہلی بارش دیکھ کر وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی کبوتر وہاں آتا ہے۔ مینا، تم یہاں پتوں میں کب تک چھپی بیٹھی رہو گی؟ جاؤ اپنے لیے ایک گھر بنا لو۔ بنٹی ماما، میں اپنا گھر کیسے بناؤں گی؟ میرے ماما بابا کا گھر تو طوفان میں ٹوٹ گیا تھا، میں اکیلی اب اپنا گھر کیسے بناؤں گی؟ دیکھو بیٹی، پکا نہ سہی تو کچا بنا لو۔ اگر ایسے بارش میں بھیگتی رہی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ ہاں، ٹھنڈ تو مجھے بہت لگ رہی ہے، اور یہ بادلوں کی آواز سن کر تو میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اب اچھا یہی ہوگا، مجھے خود ہی اپنے لیے ایک گھر بنانا ہوگا۔ اگلے دن سے ہی مینا چڑیا تنکے لا کر اپنا گھر بنانا شروع کرتی ہے۔ بادل کوا اور بجلی کا بھی یہ دیکھ کر چڑ جاتے ہیں۔ بادل جی دیکھ لو، کر لو بات، اب یہ بھکاری چڑیا بھی ہمارے پڑوس میں گھر بنا کر رہے گی۔ ہمارے پکے گھروں کے بیچ میں یہ چڑیا کا کچا گھر کتنا برا لگ رہا ہے۔ چلی، چاہے جو بھی ہو جائے، ہم اس چڑیا کا گھر یہاں نہیں بننے دیں گے۔ تبھی بادل کوا اور بجلی کبھی مل کر ایک یوجنا بناتے ہیں۔ بادل جی، آج تو بہت مزہ آ گیا، کتنے مزے کے میٹھے میٹھے آم کھائے ہیں۔ روز ایسے میٹھے میٹھے آم مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ بلبل تو آج پورے جنگل کو مفت میں آم کھلا رہی ہے۔ بجلی کبھی کی بات سن کر مینا چڑیا ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور آم کھانے کے لیے بلبل کے باغیچے میں چلی جاتی ہے۔ بادل جی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ مینا لوٹ آئے اس کا گھونسلہ گرا دو۔ پھر بادل کوا مینا کا گھونسلہ نیچے گرا کر توڑ دیتا ہے۔ ادھر مینا چڑیا بلبل کے باغیچے میں جا کر آم کھانے لگتی ہے، لیکن بلبل اسے دیکھ کر شور مچا دیتی ہے۔ ارے ارے، دیکھو تو یہ چڑیا میرے باغ میں آم کھا رہی ہے، دیکھنے میں تو کتنی بھولی ہے، لیکن کام تو دیکھو اس کے چوروں والے ہیں۔ بلبل کا شور سن کر سبھی پکشی وہاں آ جاتے ہیں۔ آپ شور کیوں مچا رہی ہیں بلبل کاکی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اچھا، ایک تو میرے باغیچے سے آم چرا کر کھا رہی ہے اور اوپر سے پوچھ رہی ہے کہ میری غلطی کیا ہے۔ ارے کاکی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو بجلی آنٹی نے کہا کہ آپ آم کی دعوت دے رہی ہیں، اس لیے میں یہاں چلی آئی۔ آپ ہی بتائیں، کیا کبھی میں نے آپ کے باغیچے سے چوری کی ہے؟ ہائے ہائے، دیکھو کیسا زمانہ آ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، خود بیٹھی آم کھا رہی ہے اور بدنام مجھے کر رہی ہے۔ بجلی آنٹی، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ کوئی بھی پکشی مینا چڑیا کا وشواس نہیں کرتا اور مینا روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھونسلے کے پاس جاتی ہے تو اپنے گھونسلے کو نیچے ٹوٹا ہوا دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ اے اوپر والے، میرا گھر کس نے توڑ دیا ہے؟ میں نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اب مجھے پھر سے بارش اور طوفان میں ایسے ہی رات بتانی ہوگی۔ مینا بیٹھی ایسے رو رہی تھی، تبھی بجلی کبھی اور بادل کوا ہنستے ہوئے وہاں آتے ہیں۔ بادل جی، یہ تو بہت بھولی ہے، ہم نے کتنی آسانی سے اسے اپنی جال میں پھنسا لیا اور یہ پھنس بھی گئی۔ بجلی آنٹی، اگر آج میرے بھی ماتا پتا ہوتے تو میں بھی آپ کی طرح بڑے گھر میں رہ رہی ہوتی۔ آپ سب مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کیوں ہر سمے میرا مذاق بناتے ہو؟ میں تو آپ سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی ہوں۔ مینا کی باتیں سن کر بجلی اور بادل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ رات مینا چڑیا بارش میں ہی گزارتی ہے۔ ایک دن مینا چڑیا بھوجن کی کھوج میں بستی کی اور جاتی ہے، تبھی اسے مٹی کے برتن بنانے والا ایک انسان دکھائی دیتا ہے۔ ارے، یہ تو کتنے سندر برتن ہیں، اگر یہ لوگ مٹی سے برتن بنا سکتے ہیں تو کیا مٹی سے گھر نہیں بن سکتا؟ اگر میرا بھی ایک مٹی کا گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں، اگر میرا گھر سندر ہوگا تو سبھی پکشی مجھ سے دوستی کریں گے۔ پھر مینا چڑیا اپنے چونچ میں تھوڑی تھوڑی مٹی لا کر اپنے پیڑ پر جمع کرتی ہے۔ مٹی تو میں لے آئی ہوں، لیکن یہ بدماش پکشی پھر سے میرا گھر نہ توڑ دے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تبھی کبوتر وہاں آتا ہے۔
अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊं बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। किकी, किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तोते भैया, पता नहीं मेरा किकी कहाँ चला गया। रात तो वो मेरे साथ ही सोया था। जब मैं सुबह उठी तो वो घोंसले में नहीं था। अरे डरो नहीं बबली बहन, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर कबूतरी के बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। चलो पक्षियों, हमें लगता है कि अब हमें महारानी चील की मदद ले लेनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मिलकर महारानी चील के पास जाते हैं और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे, तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा कीकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि कीकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा कीकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा कीकी। चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे कीकी को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं।
اس لیے میں اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ منع کرتی ہوں، لیکن جب میں اپنے جنگل کے پکشیوں کو پریشان دیکھتی ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ چیل مہارانی، آپ سچ میں بہت اچھی رانی ہیں۔ تم پکشیوں کو شاید پتا نہیں کہ کوئی ہے جو اس پتھر کو پانے میں لگا ہوا ہے۔ بجلی، یہ چیل مہارانی بہت چالاک ہے۔ جو اس کے پاس نیلا پتھر ہے وہ مجھے کسی بھی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ اسے یہ بات معلوم ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے جنگل کے پکشیوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ کتنے بھی مشکل پڑنے پر وہ پکشی اس نیلے پتھر کی بات نہیں کرتے۔ لیکن پتی جی، آپ اس پتھر کو حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم چنتا نہیں کرو بجلی، اس بار تو میں اس نیلے پتھر کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگلے دن ایک مانو چڑیا اس مہارانی چیل کے جنگل میں آتی ہے۔ مدد کرو، کوئی تو میری مدد کرو۔ وہ ایسے چلاتی ہوئی پورے جنگل میں اڑ رہی تھی۔ ارے، یہ چڑیا کون ہے جو اس طرح سے چلا رہی ہے؟ تبھی مانو چڑیا نیچے آتی ہے۔ چڑیا بہن، کون ہو تم اور کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ کبوتری بہن، میرا نام مانو چڑیا ہے اور میں اپنے 2 بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آج دوپہر وہ میرے ساتھ بھوجن لینے نکلے تھے، تبھی ایک کالا باز ہم دونوں کا پیچھا کرنے لگا۔ میں تو کافی تیزی سے اڑ رہی تھی، لیکن اس نے میرے بچوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا اور وہ تیزی سے اڑتا ہوا اسی اور ہی آیا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کو لے کر بہت چنتت ہوں۔ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں اسی جنگل میں آ گئی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کالا باز اسی جنگل میں رہتا ہے۔ کیا کالا باز؟ ہاں، وہ تو ہمارے جنگل میں ہی رہتا ہے۔ چلو چڑیا بہن، ہم وہیں چلتے ہیں۔ اگر تمہارے بچے وہیں ہوئے تو ہم اسے واپس دلا کر ہی رہیں گے۔ پھر وہ سبھی پکشی کالے باز کے گھونسلے پر جاتے ہیں۔ ارے، یہاں تو کالا باز نہیں ہے۔ کیا کبوتری بہن، اگر وہ باز یہاں نہیں ہے تو میرے بچوں کو لے کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے مانو چڑیا زور زور سے رونے لگتی ہے۔ چڑیا بہن، ڈرو نہیں، تمہارے بچے تمہیں آج ہی واپس ملیں گے۔ چلو پکشیوں، ہم سب چیل مہارانی کے پاس چلتے ہیں۔ اب سبھی پکشی چیل مہارانی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ چیل مہارانی، اس کالے باز کو تو ہمیں کڑی سزا دینی چاہیے۔ آپ ابھی اس نیلے پتھر… طوطے خاموش۔ چیل مہارانی طوطے کو چپ کروا دیتی ہے۔ کیا ہوا چیل مہارانی، آپ غصہ کیوں ہو گئی؟ کیا آپ کو میری مدد نہیں کرنی؟ چڑیا، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، تم چنتا نہیں کرو۔ میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر تمہارے بچوں کو ڈھونڈتی ہوں۔ پیپلی کبوتری، جب تک چڑیا کے بچوں کا پتہ نہیں چل جاتا، یہ تمہارے گھونسلے میں ہی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے چیل مہارانی اپنی گفا کے اندر چلی جاتی ہے۔ پکشیوں، آپ کی مہارانی کو تو ذرا بھی مجھ پر دیا نہیں آئی۔ مجھے تو لگا تھا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے جنگل کے کالے باز نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کچھ بھی کرے گی میرے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن شاید مجھے اب میرے بچے کبھی نہیں ملیں گے۔ لگتا ہے پکشیوں، ہمیں ہی اب کچھ کرنا ہوگا۔ الو سپاہی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ الو یار، مہارانی چیل تو بچوں کو لے کر ذرا بھی چنتت نہیں ہے، اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے، اس بیچاری چڑیا کی طرف ہی دیکھو، بیچاری کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ ہمیں اس کی مدد ابھی کرنی ہوگی۔ تم جاؤ اور چپ چاپ اس نیلے پتھر کو لے کر باغیچے میں آ جانا۔ کیا ہم مہارانی چیل کو دھوکہ دیں گے؟ ہاں الو یار، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن کیا کریں، اس سمے اس چڑیا کا اپنے بچوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پھر سبھی پکشی مل کر الو سپاہی کو راضی کر لیتے ہیں۔ رات کو جب مہارانی چیل سو رہی تھی تو الو سپاہی چپکے سے گفا کے اندر جاتا ہے اور چپ چاپ اس نیلے پتھر کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چیل مہارانی، مجھے معاف کرنا، لیکن اس چڑیا ماں کے آنسو اب ہم سے دیکھے نہیں جا رہے۔ پھر الو سپاہی وہ پتھر لے کر باغیچے میں جاتا ہے جہاں پہلے ہی سارے پکشی جمع ہوئے تھے۔ وہ دیکھو، الو پتھر لے آیا۔ چڑیا، اب چنتا نہیں کرو، تمہارے بچوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سنتے ہی چڑیا
सभी पक्षियों की ओर देखने लगती है और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उल्लू उस पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर। अभी उसने इतना कहा ही था कि उड़ते हुए तेजी से बादल कव्वा आता है और उस पत्थर को चुरा कर ले जाता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे कव्वे, इस पत्थर से दूर रहो। अरे पक्षियों, मैं कोई पागल हूँ जो इस पत्थर को दूर रखूंगा? इस पत्थर को पाने के लिए ही तो मैंने ये सब चाल चली थी। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे उसे ढूंढना है। हा 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 हा। कव्वे की ये बातें सुनकर सभी पक्षी मानो चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत मायूसी दिखाई दे रही थी। चिड़िया, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी वजह से हमने अपनी चील महारानी को धोखा दिया और तुम हमारे साथ ही ये सब कर रही थी। तभी बादल कव्वा वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चिड़िया, तुम अब हमें ये अपने झूठे आंसू मत दिखाओ। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तभी चील महारानी भी वहाँ आ जाती है। चील महारानी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमारी गलती की वजह से वो जादुई नीला पत्थर वो कव्वा ले गया। मैं इसीलिए तो तुम सब पक्षियों से कहती थी कि उस पत्थर के बारे में बात ना करो। अब देखा ना, वो गलत पंखों में चला गया है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, मैंने आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस सब में मेरी मजबूरी थी। कव्वों ने मिलकर उस काले बांस के साथ मेरे बच्चों को कैद कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो पत्थर हासिल करने में उनकी मदद ना की तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मानो चिड़िया की असली परेशानी सुनकर चील महारानी भी हैरान हो जाती है। तुम सब पक्षियों को अपने किए का पछतावा है और मानो चिड़िया, तुम्हें भी अपने किए का पछतावा है। तुम सब पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी पक्षी चील महारानी के साथ उसी गुफा में जाते हैं। चील महारानी उन्हें गुफा के अंदर एक नई गुफा में ले जाती है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक और नीला पत्थर था। अरे ये नीला पत्थर यहाँ कैसे? महारानी, वो नीला पत्थर तो मैं ही लेकर गया था ना। पक्षियों, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और हमेशा आगे चलकर ही सोचती हूँ। जिस दिन मानो चिड़िया इस जंगल में आई थी, मैंने उसी दिन ये नीला पत्थर यहाँ रख दिया था और इसकी जगह एक नकली पत्थर वहाँ रख दिया था। मतलब यही असली जादुई पत्थर है। हाँ बबली कबूतरी। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। ए जादुई नीले पत्थर, मानो चिड़िया के बच्चे जहाँ भी है उन्हें यहाँ ले आओ। चील महारानी के इतना कहते ही वो पत्थर चमक उठता है और उसमें से दो प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर वो कव्वे पत्थर को पाकर बहुत खुश हो रहे थे। बिजली, अब हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। बादल जी, जल्दी से इस पत्थर से मांगिए मेरे लिए ढेर सारा सोना और मुझे इस जंगल की महारानी बना दो। हाँ हाँ बिजली, मांगता हूँ। फिर बादल कव्वा उस पत्थर से कहता है, ए जादुई पत्थर, जल्दी से मुझे इस जंगल का राजा और मेरी पत्नी को रानी बना दो। लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। बादल कव्वे के बार बार कहने पर भी कोई जादू नहीं होता। लगता है बादल जी, उन पक्षियों ने हमें उल्लू बनाया है। क्या बिजली, हम उल्लू बन गए? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? जंगल में 4-5 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। इतनी बरसात के कारण जंगल के पक्षियों के घोंसले भी टूट रहे थे। चिंकी, हमारा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? चीकू जी, इस समय हमें भला कौन रखेगा? चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। वो पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर के लिए उड़ते हैं।
मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ अपने घर में गहरी नींद सोई हुई थी। तभी बारिश के कतरे चिड़िया के चेहरे पर पड़ते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है। उठो मीना बेटी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई। अभी छत तो मैंने कल ही मरम्मत की थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही हैं इससे तो मेरा घर टूटने का भी खतरा है। मामा वो देखिए, बारिश का पानी तो घर के अंदर आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नहीं मीना बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, हम ये पानी निकालते हैं। फिर मीना चिड़िया और उसकी मम्मा पानी बाल्टी में भर भर कर बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन वो पानी तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मीना बेटी, हम ये पानी नहीं निकाल सकते, हमें घर से निकलना होगा, अब ये घर भी टूट जाएगा। लेकिन मामा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो माँ बेटी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि चिंकी और चीकू तोता भी आ जाता है। क्या हुआ मानो बहन, तुम घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? चीकू भैया, क्या बताऊं, मेरे पूरे घर में पानी भर चुका है, किसी समय भी मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जा रही थी। चिड़िया बहन, हमारा घर भी टूट गया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे, लेकिन अब तो तुम्हारा घर भी टूटने वाला है। चलो हम भी तुम्हारे साथ कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो सब कबूतर के घर की ओर उड़ते हैं। जब वो सब कबूतर के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कबूतर और उसकी पत्नी पेड़ पर बैठे रो रहे हैं और उनका घर जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर भैया, क्या हुआ, आपका घर कैसे टूटा? मानो बहन, इतनी तेज हवा चली कि जिस पेड़ पर हमारा घर था वो जोर जोर से हिलने लग गया और हमारा घर नीचे गिरकर टूट गया। कबूतर भैया, हमारे घर में भी बारिश का पानी जमा हो गया है और चीकू भैया का घोंसला भी टूट गया है। अब ऐसी तेज बारिश में हम सब कहाँ जाएंगे? मानो बहन, कप्पों का घर मजबूत है, हम उन्हीं के घर जाते हैं, वो एक रात तो हमें रह ही लेने देंगे। फिर वो सब वहाँ से कप्पों के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है दरवाजे पर? बिजली बहन, मैं मानो चिड़िया और मेरे साथ कबूतर और तोता भी है। हम सब के घर टूट गए हैं, हम सबको एक रात बस अपने घर में बिता लेने दो। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, तुम सबको अपने घर ले आओ ताकि तुम सबके वजन से हमारा घर भी टूट जाए। चले जाओ यहाँ से। पिछली एक रात की तो बात है, आने देते हैं पक्षियों को। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ठेका उठा रखा है सबका। बिजली बहन, मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमें एक रात रहने दो। जल्दी निकलो सब यहाँ से, हमें नींद आ रही है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। फिर वो सब पुराने बड़े पीपल के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कपी के पास जाते हैं। उस बूढ़ी कपी का घर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी पक्षियों को अपने घर में आने देती है। वो बूढ़ी कपी सभी पक्षियों को खाना खिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मेरी बेटी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे अंदर न आने देती तो शायद मैं अपनी बेटी को खो देती। बेटी, बुरे समय में ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला कौन हमारी मदद करेगा? हाँ माँ जी, हम पहले बादल कप्पे के घर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी बिजली बहुत घमंडी है। वो कहती है कि हम सब की वजह से उसका घर भी टूट जाएगा। तोते बेटा, भला हम उस बिजली कपी से कैसे अच्छाई की उम्मीद लगा सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम सब इस जंगल से निकल जाते हैं, क्योंकि पहले भी इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। क्या पता बच्चों, हम सब अपने घर बनाएं और फिर बारिशों से वो टूट जाएं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। माँ जी, मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ मौसम भी ठीक रहता है, हम सबको वहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मानो चिड़िया की बात मान लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब बिजली कपी पक्षियों को देखती है तो वो उन्हें आवाज लगाती है। अरे, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम सब? बिजली, तुमने तो हमें अपने घर में नहीं रहने दिया, अब हम सब अपने लिए नया जंगल ढूंढने जा रहे हैं। वैसे भी इस जंगल में बहुत तेज बारिशें होती हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो।
तुम्हारे घर का भी क्या भरोसा, वो भी तो टूट सकता है। हम सब इंसानों की बस्ती के आगे वाले जंगल में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारी काली जुबान, भला मेरा घर क्यों टूटेगा? बहुत पक्का है मेरा घर। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े और पक्के मजबूत घर में रहती हूँ। मैं तो आपका भला सोच रही थी बिजली बहन, कल को अगर आपका घर टूट गया तो आप अकेले इस जंगल में क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी इस जंगल से निकल जाओगे तो हम भी खुश रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। नए जंगल में जाकर वो सब पक्षी अपने लिए नए नए घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक रात जंगल में तेज बारिश होती है। कौवों के घर के पास एक बड़ा पेड़ था। वो पेड़ हवा के कारण उखड़ता है और उनके घर पर जा गिरता है। कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। बिजली, अब ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने के लिए। बादल जी, वो सब इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ गए हैं वो सब। चलो जल्दी करो, हम भी वहीं चलते हैं। ऐसी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। बिजली, अगर यहीं बैठे रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। तेज बारिश और ठंडी हवा के कारण बिजली की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो उस जंगल में पहुँचते हैं तो कोई पक्षी भी उन्हें अपने घर में नहीं आने देता। बादल जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर मुझे कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, मानो का घर, मानो चिड़िया के घर हम अभी तक नहीं गए, वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और अपने घर में नहीं आने देगी। चलो बिजली, जाकर तो देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे बिजली और बादल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मानो बहन, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अपने घर में रख लो। मानो चिड़िया जल्दी से उन कौवों को अपने घर में ले जाती है, उन्हें खाना देती है और बिजली कवि को बुखार की दवा देती है। बिजली कवि मानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने चिड़िया के साथ इतना बुरा किया, लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कव्वे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कव्वे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कवि को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कव्वे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कव्वे की माँ हैं, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कवि अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है।
छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली का भी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कपी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कपी नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है। जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई